Hello students. In this video lecture, I am going to share with you the concept of control statements in C++. Now, before starting the control statements, first let me explain you the flow of a program in a C++ programming. This is the simplest example. This is the program to add two numbers. अब होता क्या है, जब भी हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, ए प्रोग्राम इज कॉल्ड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग। हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और कंप्यूटर को देते हैं एंड उसमें यूजर इनपुट डालेगा, प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट मिल जाएगी। नाउ व्हाट इज द फ्लो ऑफ द program? Flow is in C++ programming language. Normally the flow of the program is sequential. There is a sequential execution of all the statements, all the instructions written in a programming language, written in C++. होता क्या है, जैसे ये हमारे 3 4 कोई 8 10 स्टेटमेंट्स हैं, वी हैव रिटन इन C++. देयर इज अ सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन. कंपाइलर क्या करता है, पहले सबसे पहली वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है, देन सेकंड लाइन इज एग्जीक्यूटेड, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, लाइन वाइज. देयर इज अ सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. कभी भी कहीं भी जंप नहीं होता, वो किसी स्टेटमेंट को स्किप नहीं करता, मिस नहीं करता अपनी चॉइस. तो फिर वॉइड मेन, थर्ड ब्रैकेट, फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, उनको मेमोरी एलोकेट होती है, देन सी आउट, एंटर टू नंबर, मैसेज आएगा, फिर सी इन, वो दो नंबर यूजर इनपुट करेगा, दैट गेट्स स्टोर्ड इन वेरिएबल्स ए एंड बी. देन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, सम इज इक्वल टू a plus b, and this statement is executed, C out is sum, the value of the sum will get printed, then get ch program terminal. So there is a sequential execution of instructions in C++ programming. अब रियल लाइफ में जब होता क्या है, why do we make use of programming language? We want to solve the real life problems making use of computer system. तो हम रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कंप्यूटर से सॉल्व करवाने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका कोड लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिख के देते हैं, कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है, आउटपुट देता है. अब रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता कि ऑल द प्रॉब्लम्स आर सीक्वेंशियल, सीधी सीधी प्रॉब्लम्स नहीं होती. देयर आर जंप्स, देयर आर डाइवर्जेंस, देयर आर डिसीजन मेकिंग. सपोज हम इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाते हैं एंड वी वांट टू मेक इलेक्शन कार्ड. अब इलेक्शन कार्ड बनाने के लिए देयर इज अ कंडीशन, you need to take your date of birth certificate with yourself in that office. आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाते हो, वो आपकी एज कैलकुलेट करते हैं. ओनली इफ यू आर 18 years or more than 18 years of age, only then you can get the election card. Otherwise you will not be get any election card. There is a condition. रियल लाइफ में कोई भी काम करता है, देयर आर कंडीशन. अगर आप ने ग्रेजुएशन कर ली, अब आपने पीजी करनी है, तो पीजी में अगर आप अप्लाई करते हैं, so there is a condition. If the marks are more than 55%, only then you are eligible for the admission to a PG course in a reputed university. Otherwise, you won't be able to get admission in any course. So, in real life problems, there are conditions, there are jumps, there are diversions. So, sequential access से हमारा काम नहीं चलेगा. For that purpose, we need control statements in any programming language and also in C++. There are these three categories of control statements that are available in C++. First is if, second loops, and third is switch. There are other terms also like break, continue, go to statements that I will discuss in between. First is if. The if structure includes three types of statements. Broadly, if we divide the if structure, it is divided into three types. First is simple if statement, second is if else statement, third one is if else if later. First if statement. How if statement is written, this is the general syntax of if statement. This is the general syntax. Syntax means लिखने का तरीका. Programming language में हम उसे कैसे लिखते हैं. First, the if keyword is written. This is a keyword because it is a predefined meaning. Then in the bracket, the condition is defined. जो भी condition हम देना चाहते हैं. Then after the condition, within these curly brackets, हम उसका code लिखते हैं. जो भी code हम execute करवाना चाहते हैं based on this condition. If this condition is true, if क्या करेगा, if check करेगा, इसमें जो condition लिखी है उसको check करेगा. If condition is true, अगर वो true है, तभी ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जो ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा है. अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो कंपाइलर यहाँ से जंप कर जाएगा और यहाँ से नीचे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा. आई विल एक्सप्लेन दिस विद दिस एग्जांपल. दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल. header files are there, void main, I have taken a number, int number is equal to 10, उसमें 10 initialize कर दिया मैंने. Now I have written a condition, if number modulus 2 is equal to 0.
अगर नंबर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, व्हाट डज इट मीन? किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, इट मीन्स दैट नंबर इज अ इवन नंबर। तो मैंने ये इफ के अंदर कंडीशन लगा दी, इफ नंबर पर्सन 2 इज इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो देन इट विल प्रिंट द मैसेज द नंबर इज इवन। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है कि यहाँ से ये सीधा जंप करेगा, इस ब्रैकेट के अंदर नहीं जाएगा, ये 3 लाइन है कोड की वो स्किप करेगा, दिस ब्रैकेट, दिस स्टेटमेंट एंड दिस ब्रैकेट, यहाँ से स्किप करेगा, यहाँ से इफ से जंप करने के बाद सीधा कंट्रोल पे जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा एंड नथिंग विल गेट प्रिंटेड ऑन योर स्क्रीन if the condition is false. If the condition is true, as in this case 10 is divided by 2, it is even number, तो यहाँ पे आउटपुट आएगी द नंबर इज इवन। कोई भी स्किप नहीं होगा, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होगी, बट सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन तब टर्मिनेट हो जाएगी, स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर यहाँ पे मैं 10 की जगह 11 ले लूँ, इफ नंबर इज इक्वल टू 11, 11% 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है यहाँ से स्किप करेगा, गेट शिफ्ट पे आ जाएगा। So this is the first control statement in which we can control the flow of the program according to the requirement of the program. Second is if else statement. Same है जैसे if statement में होता है वैसे ही if else statement है, there is a slight variation. if else में क्या होता है, वही same syntax लिखने का तरीका वही है, एक नंबर लिया 15, if के बाद उसके बाद ब्रैकेट में कंडीशन लिखी जाती है and make sure there is no semicolon at the end of the if statement. In the previous case वहाँ भी ऐसा ही है, इफ के जो लास्ट में है वहाँ पे सेमीकोलन नहीं आता, कभी भी नहीं आता, अदरवाइज दिस स्टेटमेंट विल गेट टर्मिनेटेड है। इफ के बाद उसके बाद ब्रैकेट में कंडीशन लिखी, कंडीशन लिखने के बाद मैंने ये एक मैसेज प्रिंट करवाया, सी आउट द नंबर इज इवन, जो पिछले प्रोग्राम में हमने किया था, दिस इज सेम। यहाँ पे आई हैव एडेड एन एक्स्ट्रा पार्ट एल्स, फिर एल्स कीवर्ड लिखा, एल्स इज आल्सो कीवर्ड, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मैंने ये मैसेज प्रिंट करवाया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस कोड एंड दिस कोड? अब होता क्या है, इफ हो या इफ एल्स हो, इफ के अंदर एक कंडीशन लिखी जाती है, अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो जो इफ के बाद वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो जो एल्स वाले पार्ट में हमने लिखा है दैट पार्ट विल गेट एग्जीक्यूटेड। तो देयर आर टू ब्लॉक्स, वन ब्लॉक इज इफ ब्लॉक, अनदर ब्लॉक इज एल्स ब्लॉक। इनके अपने अपने ब्लॉक्स होते हैं, जैसे मैंने इफ लिखा, इफ का ये ब्लॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक, curly bracket, see out statement, this curly bracket, this is the block of if, and this is the block of else, this curly bracket, see out, and this curly bracket, this is called as block of else. अब if का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा अगर if की कंडीशन ट्रू है, अगर if की कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर if की कंडीशन फॉल्स है तो else वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, बट एट ए टाइम ओनली द वन ऑफ द ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड। ऐसा कभी नहीं होगा कि if और else दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, इट विल नेवर हैपन। It all depends upon the condition. In this case 15% 2 is not equal to 0, condition is false। हमारे इस केस में कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है इफ ब्लॉक को वो स्किप कर देगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, सीधा एल्स में चला जाएगा, एल्स में जाके प्रिंट करेगा द नंबर इज ऑड। आई हैव रिटन द रॉन्ग मैसेज, यू कैन ऐड नंबर हियर, द नंबर इज ऑड। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो इफ वाले पार्ट में जाता, प्रिंट करेगा द नंबर इज इवन, एल्स को स्किप करेगा, सीधा कंट्रोल रिटर्न 0 पे आ जाए और गेट पे आ जाए। इफ एल्स इफ लेटर, दिस इज एन एक्सपेंशन ऑफ द इफ स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सपोज हमने एक स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट किए और हमें प्रिंट करवाना है कि उसकी डिवीजन कौन सी, अगर 40% से नीचे है तो वी विल प्रिंट द स्टूडेंट इज फेल, अगर 40 और 50 के बीच में है तो थर्ड डिवीजन विल गेट प्रिंटेड, अगर 50 और 60 के बीच में है देन द मैसेज विल प्रिंटेड लाइक सेकंड डिवीजन, एंड इफ द मार्क्स आर मोर देन 60% वी विल प्रिंट द स्टूडेंट हैज गॉट द फर्स्ट डिवीजन। सिंपल, एक वेरिएबल लिया, आई हैव एंटर द नंबर, एंटर अ नंबर, नंबर में वो मार्क्स से स्टोर हो जाएंगे। मैंने पहली कंडीशन लगाई इफ नंबर इज लेस देन 0 और नंबर इज ग्रेटर देन 100। अब यूजर ने अगर 0 से कम नंबर इनपुट किए हैं माइनस में, या 100 से ज़्यादा इनपुट कर दिए हैं, तो एक मैसेज विल बी प्रिंटेड रॉन्ग, प्लीज एंटर द एग्जैक्ट नंबर, ये वन कंडीशन। सेकंड एल्स, अब इफ के साथ फिर से एल्स, अब इस एल्स के साथ फिर से इफ ऐड किया है। एल्स में कभी कंडीशन नहीं होती, अगर हम प्रीवियस कोड में जाएं तो कंडीशन इज ऑलवेज रिटन विद द इफ कीवर्ड,
कंडीशन इज नेवर रिटन विद द एल्स कीवर्ड। एल्स के साथ कभी भी कंडीशन नहीं आती, ब्रैकेट्स नहीं आती। कंडीशन सिर्फ एफ के साथ, इफ के साथ आती है। इफ में मैंने कंडीशन लिख दी, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है, बाय डिफॉल्ट अगर जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स में चला जाएगा। हमने एल्स में कोई कंडीशन नहीं लिखी। नो, यहाँ पे देखो मैंने पहली कंडीशन लिखी, देयर आर मल्टीपल कंडीशन। अब इस प्रोग्राम में हमारी बहुत सारी कंडीशन है। इफ नंबर्स आर बिटवीन 40 to 50 प्रिंट दिस, इफ नंबर्स आर बिटवीन 50 to 60 print this, if numbers are more than 60 print this. There are a number of conditions. There is not a single condition in this program code. So first condition मैंने लिखी, number is less than 0 और number is greater than 100, so wrong number. else के साथ फिर से if लगाया using the space. ये if के साथ फिर से condition लगा दी, if number is greater than 0 and number is less than 40. 0 40 के बीच में तो print fail. Third condition फिर से else, again else with the if keyword, condition, third division, condition, second division, and at last else if number is greater than 60, see out print first division. So this is the if else if letter. Now this was the first control statement, if. Now second control statement that is used are called as loops. Loops are used for performing the iterative process. जो काम हमें बार बार करना है, बार बार काम रिपीट होता है. For performing such tasks, we make use of loops. There are three types of loops available in C++: for loop, while loop, and do while loop. First, for loop. The syntax, general syntax for loop is, कैसे लिखा जाता है, पहले for keyword लिखा जाता है, then in the bracket there are three things, तीन चीजें लिखी जाती हैं. First is initialization, second is condition, and third is increment or decrement. Or the syntax, look at the syntax very carefully. फॉर लूप के अंदर तीन चीजें लिखी जाती हैं अलॉन्ग विद द टू सेमीकोलंस. दो सेमीकोलंस फॉर लूप के अंदर होते ही होते हैं. दिस इज द जनरल सिंटैक्स. अगर आप एक भी मिस करेंगे इट विल शो एन एरर मैसेज. सबसे पहले इनिशियलाइजेशन की जाती है. इनिशियलाइजेशन मींस वेरिएबल को स्टार्ट किया जाता है कि यहाँ से स्टार्ट करना है. उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद कंडीशन लिखी जाती है कि कहाँ तक काम करना है. उसके बाद सेमीकोलन एंड लास्ट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो भी करना है, प्लस करना है, माइनस करना है. और उसके बाद कोई सेमीकोलन नहीं है और फॉर के एंड में भी कभी भी सेमीकोलन नहीं आता, जस्ट लाइक इफ स्टेटमेंट. और उसके बाद वही ब्लॉक के अंदर जो भी कोड आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं. नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल. आई हैव टेकन अ वेरिएबल इंट आई. एक वेरिएबल ले लिया मैंने आई. अब मैंने क्या करना है कि 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है. 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है. तो मैंने फॉर लूप यूज किया. फॉर जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कर दिया. कहाँ से शुरू किया, 1 से. हमने 1 से वेरिएबल प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है तो आई इज इक्वल टू 1. कंडीशन लगाई, फिर उसके बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद कंडीशन. कंडीशन क्या है कि कहाँ तक प्रिंट करवाना है. आई इज लेस देन इक्वल टू 10, उससे आगे ना जाए. एंड देन आई प्लस प्लस, एक एक उसमें इंक्रीमेंट करता जाए. एंड देन सी आउट आई, आई की वैल्यू को वो प्रिंट करता जाएगा. नाउ लुक एट द वर्किंग ऑफ फॉर लूप. फॉर लूप कैसे काम करता है, इसमें तीन तीन चार स्टेप्स होते हैं. पहले वो इनिशियलाइज करता है, आई को उसने 1 इनिशियलाइज कर दिया. ठीक है. उसके बाद यहाँ से कंट्रोल जाता है कंडीशन में. फिर वो कंडीशन चेक करता है, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई इज 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू. अगर कंडीशन ट्रू है तभी जो फॉर का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है. जो ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा है वो पार्ट एग्जीक्यूट होता है अगर ये कंडीशन ट्रू है. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ से कंट्रोल सीधा जंप करके फॉर लूप के बाहर आ जाता है. जस्ट लाइक इन इफ. कंडीशन ट्रू है तो फॉर का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. कंडीशन फॉल्स है तो फॉर का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसको स्किप करेगा, जंप करेगा. अब इस पहले केस में हमारा आई 1 है, इनिशियलाइज हो गया 1. फिर कंडीशन चेक करता है. अगर कंडीशन ट्रू है तो सीधा कंट्रोल यहाँ पे चला जाता है ब्लॉक के अंदर. यहाँ से इंक्रीमेंट पे नहीं जाता वो. अगर कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो इसके बाद कंट्रोल सीधा फॉर ब्लॉक के अंदर आएगा. यहाँ पे वो आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा. 1 विल गेट प्रिंटेड. यहाँ पे प्रिंट करने के बाद अब ये यहाँ से बाहर नहीं जाएगा. ये यहाँ से बाहर तब तक नहीं जाता जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती. यहाँ से कंट्रोल जाता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पोर्शन. जैसे यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे आई की वैल्यू को वो इंक्रीमेंट करेगा. पहले 1 था, अब 2 हो गया. इंक्रीमेंट करने के बाद वो फिर से कंडीशन चेक करता है. फिर से कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू. अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से ब्लॉक के अंदर आएगा, आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर से इंक्रीमेंट पोर्शन पे जाएगा. तो ये सर्कल चलता जाता है. कंडीशन कंडीशन ट्रू है, एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी ऑफ द फॉर लूप, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट करने के बाद फिर से कंडीशन. ये तब तक चलता जाता है लूप जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती. जैसे 10 प्रिंट किया उसने, 10 प्रिंट करने के बाद उसने इंक्रीमेंट किया, 11 हो गया.
तो 11 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 10, तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद वो सीधा फॉर से बाहर आ गया। So in this way, the numbers from 1 to 10 gets printed by making use of for. Second is while loop. While loop और for loop same होते हैं. There is a slight difference in the syntax of these two loops. While में क्या लिखा जाता है? While में ब्रैकेट के बाद सिर्फ कंडीशन लिखी जाती है. यहाँ पे इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इसके अंदर नहीं लिखा जाता. यहाँ पे कोई भी सेमीकोलन नहीं होता. सिर्फ सिंपली जैसे इफ के साथ होता है, while के साथ ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखी जाती है और उसके बाद बॉडी आफ्टर लूप. बॉडी आफ्टर लूप में जो भी आपने काम करवाना है वो करवाना है और लास्ट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. लुक एट दिस एग्जांपल. सेम एग्जांपल है. यहाँ पे मैंने नंबर्स को प्रिंट करवाया है फ्रॉम 1 to 10, जो फॉर यूजिंग फॉर लूप काम कर सकते हैं. वही काम हम यूजिंग वाइल लूप भी कर सकते हैं. दीज टू लूप्स आर ऑल्टरनेटिव टू ईच अदर. हम दोनों में से कोई भी काम यूज कर सकते हैं किसी भी काम के. अब 1 to 10 प्रिंट करवाना है तो पहले इंट i इज इक्वल टू 1. अब इनिशियलाइजेशन वाइल से पहले ही हमने कर दी, वहाँ फॉर के अंदर इनिशियलाइज किया था वेरिएबल को. यहाँ पे वाइल के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है इनिशियलाइजेशन का, इसमें सिर्फ कंडीशन होती है. तो हमने इनिशियलाइज उसको वाइल से पहले ही कर दिया, i इज इक्वल टू 1. फिर उसके बाद वाइल के अंदर कंडीशन, ओनली कंडीशन इज देयर, सिर्फ कंडीशन लिख सकते हैं. i इज लेस देन इक्वल टू 10. बॉडी में अंदर गए, पी और आई की वैल्यू को प्रिंट किया. प्रिंट करने के बाद i प्लस प्लस यहाँ लिखा है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा, यहाँ. तो वही सेम फंक्शनिंग होगी इसकी जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती. इट विल गेट प्रिंटेड द वैल्यू ऑफ i. नाउ थर्ड वन इज डू वाइल लूप. इट इज अ डिफरेंट लूप. दिस इज अ डिफरेंट लूप फ्रॉम बोथ फॉर एंड वाइल लूप. डू वाइल में क्या होता है? पहले ये डू कीवर्ड लिखा जाता है. डू कीवर्ड के बाद ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड हम रिपीट करना चाहते हैं, जो भी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो लिखा जाता है. ये लिखने के बाद लास्ट में वाइल लिखा जाता है और वाइल के साथ कंडीशन और फिर यहाँ पे सेमीकोलन. यहाँ पे सेमीकोलन आता है वाइल में. फॉर और वाइल के एंड में नहीं आता था, बट डू वाइल के केस में वाइल के एंड पे सेमीकोलन आता है. अब होता क्या है? डू मीन्स इट विल परफॉर्म द एक्शन. कोई कंडीशन चेक नहीं होगी यहाँ पे. कंडीशन ट्रू है फॉल्स है कुछ नहीं है, सिर्फ डू मीन्स कंट्रोल सीधा अंदर आएगा, एग्जीक्यूट करेगा. फिर एग्जीक्यूट एक बार एग्जीक्यूशन करने के बाद कंडीशन चेक करेगा. अब ये कंडीशन चेक करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से ऊपर जाएगा डू, फिर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, फिर से नीचे आएगा. ये तब तक चलेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती. लुक एट दिस एग्जांपल. मैंने एक वेरिएबल लिया j इज इक्वल टू 2 इनिशियलाइज कर दिया. उसके बाद डू, डू के बाद ब्रैकेट के अंदर कंट्रोल आएगा, c और j की वैल्यू प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, उस j में इंक्रीमेंट कर देगा. अब j में 2 की जगह 3 हो जाएगा. 3 जब होगा तो वाइल में फिर उसकी कंडीशन चेक होगी. वाइल 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू. ट्रू मीन्स फिर से ऊपर जाएगा, फिर से आएगा, 3 प्रिंट करेगा, 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 तक ये नंबर प्रिंट करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 2. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल? वाइल में क्या होता है? सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, फिर उसके बाद वाइल लूप की एग्जीक्यूशन होती है. तो अगर पहले ही केस में कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, जस्ट लाइक फॉर लूप एंड वाइल. बट डू वाइल में ऐसा नहीं है. डू वाइल लूप में वन टाइम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी ही होगी, वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. देखो पहले केस में कोई कंडीशन नहीं है, सीधा डू एंड comes under the inside the body of the loop. तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी एक बार. पहले केस में कंडीशन है ही नहीं है, ट्रू है फॉल्स हमें नहीं पता. एक बार डू वाइल की एग्जीक्यूशन होगी ही होगी, वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. उसके बाद एक बार करने के बाद फिर वो कंडीशन चेक करता है. तो वन टाइम एग्जीक्यूशन डू वाइल लूप की होती ही है. तो दीज आर द थ्री लूप्स दैट आर यूज्ड इन सी प्लस प्लस. आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, उसमें भी आपने ये लूप्स की हैं. सेम लूप्स हैं, सेम वर्किंग. Now last, the last control statement is switch statement. Switch statement किसलिए यूज होता है? When we have multiple options. बहुत सारे ऑप्शन हैं और उसमें से कोई एक चूज करना है, तो उस केस में हम स्विच का यूज कर सकते हैं. स्विच स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाता है? एक नंबर लिया मैंने, इंट नंबर, वो नंबर यूजर से इनपुट करवा दिया, जो भी वैल्यू नंबर में वो स्टोर करेगा. नो, यहाँ से स्विच शुरू. स्विच का सिंटेक्स क्या है? स्विच कीवर्ड इज रिटन. स्विच के बाद ब्रैकेट के अंदर एक वेरिएबल लिखा जाता है जिसकी वैल्यू को चेक करते हैं. वेरिएबल लिखने के बाद फिर करली ब्रैकेट, ये इसका ब्लॉक बन जाता है स्विच का. करली ब्रैकेट के अंदर स्विच के अंदर मल्टीपल केसेस होते हैं. दिस इज द सिंटैक्स, दिस इज द फॉर्मेट. वी हैव टू राइट द सेम थिंग्स इन द सेम वे. वहाँ पे सबसे पहले लिखा जाता है केस 1. आप नंबर्स कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, केस 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर.
case 1. Case 1 के बाद colon, this is the syntax. If we don't write the colon, we miss the colon or we miss the case keyword, it will display an error message. Case number and colon. Colon के बाद उस case के अंदर जो भी आप काम करवाना चाहते हो, I have simply printed that it is 1. तो इसके बाद break keyword आता है, this break keyword. Then case 2, similarly case 2, उसके बाद उसके आगे colon, it's not a semicolon, it's colon. उसके बाद फिर से केस 2 के अंदर जो भी आप करवाना चाहते हो, आई हैव सिंपली प्रिंटेड दैट इट इज 2. अगेन ब्रेक स्टेटमेंट. केस 3, इट इज 3, ब्रेक स्टेटमेंट. कितने भी नंबर ऑफ केसेस हम एक स्विच के अंदर डिफाइन कर सकते हैं. मैंने अपने इस स्विच के अंदर 3 केस डिफाइन किए एंड एट लास्ट देयर इज डिफॉल्ट. हमने एक डिफॉल्ट भी लेना है. दिस इज ऑप्शनल, आप ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, बट डिफॉल्ट लेना चाहिए. डिफॉल्ट क्या होता है कि यूजर ने कोई भी एक चॉइस इनपुट करनी है कि वो क्या करना चाहता है. अगर वो चॉइस केस के साथ मैच हो जाती है तो ठीक है, अगर वो केस के साथ मैच नहीं होती तो देयर शुड बी सम मैसेज टू बी डिस्प्लेड कि दिखा जाए कि रॉन्ग चॉइस. ठीक है, तो डिफॉल्ट के अंदर जो भी प्रिंट करवाना है प्रिंट करवा दो एंड स्विच टर्मिनेट्स हियर. अब होता क्या है, सपोज यूजर ने नंबर में डाल दिया 2, नंबर इज 2, यहाँ पे स्विच आया, कंट्रोल यहाँ पे नंबर में 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 को क्या करेगा कि वो केस नंबर 2 पे जाएगा. पहले यहाँ मैच करेगा, मैच नहीं हुआ इसको स्किप करेगा, केस नंबर 2 में चला जाएगा, सीधा केस 2 में जाएगा, इट इज 2 प्रिंट करेगा. और ब्रेक, ब्रेक मीन्स ब्रेक स्टेटमेंट टेक्स द कंट्रोल आउट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट. ब्रेक जहां भी लगा होगा वहां से कंट्रोल सीधा स्विच के बाहर, जहां स्विच खत्म हो रहा है उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा. स्विच हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और स्विच हमारा यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है. अगर हमने 2 इनपुट किया है तो केस 2 में जाएगा, इट इज 2 प्रिंट करेगा. ब्रेक, ये ब्रेक यहाँ से कंट्रोल सीधा स्विच के बाहर ले आएगा. तो ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए लिखी जाती है कि इट मेक्स श्योर दैट ओनली वन ऑफ द केस इज एग्जीक्यूटेड. अगर हम ब्रेक नहीं लिखेंगे तो सारे के सारे केस एग्जीक्यूट हो जाएंगे. एंड इट डज नॉट गो विद द कांसेप्ट ऑफ स्विच स्टेटमेंट. स्विच में होता क्या है, बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई एक हमने एग्जीक्यूट करना. अब सपोज वो नंबर में 1 इनपुट करता है, वी हैव नंबर 1, यहाँ पे 1 होगा, वो 1 मैच करेगा केस 1, तो केस 1 के केस में इसी में जाएगा, प्रिंट करेगा इट इज 1 एंड ब्रेक. ब्रेक मीन्स यहाँ से कंट्रोल सीधा नीचे आ जाएगा. अगर यहाँ पे वो 3 इनपुट करता है तो 3 मीन्स यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, सिर्फ सीधा डायरेक्ट इट विल गो इनटू द केस 3, इट विल प्रिंट इट इज 3 और ब्रेक करेगा, बाहर आ. अब अज्यूम करते हैं यूजर इनपुट्स द नंबर अदर देन 1 2 3. 1 2 3 को छोड़ के वो कोई भी नंबर इनपुट करता है, 4 5 6 100 1000 0 -1. तो अगर कोई भी केस मैच नहीं हुआ, सपोज उसने इनपुट किया नंबर इज इक्वल टू 50, तो 50 मीन्स कोई केस मैच नहीं हुआ तो वो डिफॉल्ट में जाएगा. जब कोई भी केस मैच नहीं होता तो कंट्रोल गोज इनटू द डिफॉल्ट स्टेटमेंट. डिफॉल्ट में जो भी मैसेज प्रिंट किया है रॉन्ग विल गेट प्रिंटेड. तो डिफॉल्ट के बाद मैंने ब्रेक नहीं लिखा है, आप लिख भी सकते हो, कुछ बुक्स में लिखा होगा. तो लेकिन डिफॉल्ट इज द लास्ट स्टेटमेंट इन द स्विच स्टेटमेंट. तो जब लास्ट है तो लास्ट के बाद ऑटोमेटिकली कंट्रोल यहाँ से बाहर ही आएगा, आप ब्रेक लिखो या ना. इन दिस वे स्विच वर्क्स. तो स्विच में क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक चूज करना है तो हम मेकिंग यूज ऑफ स्विच स्टेटमेंट वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. So this is all about various control statements in C++.